Good morning. Hello, students. So let us learn a new lesson which is on acid, bases, and salts. So now we use in our day-to-day life many substances like lemon, sugar, salt, vinegar, and all. Now, in case we taste it, what will happen? We see that the taste is not the same. So this is an important caution which we need to follow, especially in the lab. Do not taste anything unless asked to do so. अगर आपको किसी ने टेस्ट करने के लिए चखने के लिए ना बोला हो तो आप कृपया करके उस चीज को ना चखे एंड डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो और यू शुड नॉट टच मतलब आप किसी भी चीज को लैब में बिना पूछे इस्तेमाल ना करें। तो अभी हम देखते हैं व्हाट अबाउट दी टेस्ट। सो लेमन जूस मतलब नींबू का रस वो कैसे होता है? इट इज सावर मतलब वो खट्टा होता है। देन वी कैन सी अगला वाला ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस भी खट्टा होता है टेस्ट में। देन इफ वी टेक विनेगर, विनेगर भी इफ यू टेस्ट इट विल बी सावर। फिर चलते हैं कर्ड। कर्ड मतलब दही। दही इज ऑल्सो सावर। फिर इमली, वो भी तो खट्टी ही होती है। देन कॉमन शुगर। शुगर तो मीठा होता है, सो इट विल नॉट बी सावर नॉर बी bitter, इट विल बी एनी अदर। So I can write it as any other. So in the same case अगर हम सॉल्ट को भी चखे तो वो तो खारा होता है। सो वी कैन राइट इट एज एनी अदर क्योंकि वो खट्टा भी नहीं होता है और वो बिटर मतलब कड़वा भी नहीं होता है। देन वी कम टू आंवला। आंवला का टेस्ट कैसे होता है? आंवला इज सावर, वो खट्टा होता है टेस्ट में। Then we come to baking soda. Baking soda is which we use to make in the preparation of cake and all या फिर पकोड़े में भी डालते ही। उसका टेस्ट होता है बिटर, वो कड़वा होता है। Then if we check grapes, grapes का टेस्ट भी तो खट्टा ही होता है, खट्टे अंगूर। Then अनरैप मैंगो मतलब केरी, केरी भी तो खट्टी होती है। तो ये तो हमारा टेबल कंप्लीट हो गया है। तो हमने देखा है यहाँ पे लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, टैमरिंड, फिर आंवला, ग्रेप्स, अनरैप मैंगो, ये सब क्या है? ये सब खट्टे होते हैं। सो 1 minute I'll just clear. Okay. So the substances whichever were there, they were sour in taste मतलब जो खट्टे होते हैं we can call them as acids. So you can mark this on your textbook. So substances which they sour because they contain acid. So the chemical nature will be what? Acidic. Okay, you can mark this also. The chemical nature of such substances is acidic. Then the word acid comes from the Latin word acere, which means sour. मतलब उसका मतलब होता है they are sour. The acids in these substances are natural acids. So now we can go to this table. यहाँ पे दिया हुआ है. We have acetic acid, vinegar में जो we find. Then there is formic acid which is present in ant sting. Ant sting मतलब जब मूंगी हमें काटता है वो
फॉर्मिक एसिड रिलीज करता है. Then we have citric acid, which is present in the citrus fruits like oranges, lemons. So immunity जब भी बूस्ट करना होता है तभी हमें बताया गया था ना कि बहुत सारी citrus fruits खाया करें. So that is what. Then we have lactic acid, which is present in curd. दही में present होता है lactic acid. Then in spinach, पालक हमारा उसमें oxalic acid होता है. Then we have ascorbic acid, vitamin C, which is present in amla, इंडियन गूसबेरी बोलते हैं उसे, नहीं तो सिट्रस फ्रूट्स. देन वी हैव टार्टरिक एसिड व्हिच इज प्रेजेंट इन टैमरिंड, इमली में होती है. देन इन ग्रेप्स, अंगूर, अनरैप मैंगो, कीवी एक्सेट्रा. तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये सारे जो चीजें हैं वो तो नेचर में है और उन सभी में हमें एसिड मिलता है ऑन इट्स ओन. नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस लाइक बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा क्या था? वो तो खट्टा नहीं था, वो तो कड़वा था. So the substances which are sour, okay, sorry, the substances which are bitter in taste. And also if you touch, अगर हम उसका थोड़ा पानी कर ले और हम उसको हाथ लगाए तो हमें कुछ चिकचिका सा, like it will be soapy in touch, तो उन्हें हम बोलते हैं bases. So substances which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases. And the nature of this substances, sorry, you can mark on the textbook, is said to be basic. We'll see what are the bases which are present in nature. Calcium hydroxide, which is present in lime water. We can lime water मतलब चूना, we can say, जो हम वॉल पे लगाते हैं ना पेंट लगाने के पहले, दैट इज लाइम वाटर. देन वी हैव विंडो क्लीनर. उसका एग्जांपल होगा कॉलिन वगैरह जो हम विंडो को साफ करने के लिए यूज करते हैं. उसमें बेस प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड. देन सोप जो हम इस्तेमाल करते हैं क्लीन करने के लिए, in that the base present is sodium hydroxide and potassium hydroxide. और फिर आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज जब भी हम लोग हमको एसिडिटी होता है, दैट टाइम वी टेक दैट, लाइक in case we can take an example of डाइजीन, वो जो एडवर्टाइज आता है, दैट इज बेसिकली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. और उसमें कौन सा बेस प्रेजेंट होता है? दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. वी नीड टू कीप इन माइंड कि ये जो भी बेसिस है they do not occur in nature, मतलब on its own वो present नहीं होते. So I hope you all have understood the concept of acid and bases. So in case you all have not understood, you can ask me your doubts in the next class. Thank you.